الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. گزشتہ کئی ہفتوں سے نیکی اور گناہوں سے توبہ اور استغفار کے تعلق سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں یہ بتائی جا رہی ہیں. اسی سلسلے میں آج بھی کچھ باتیں بیان کی جائیں گی. جس دین نے مسلمانوں کو پابند کیا ہے کہ وہ نیکیوں کو اپنائیں، اسلام کی خوبیوں اور محاسن کو اپنائیں اور گناہوں سے بچ کے رہیں، محرمات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جن کاموں کو اللہ رب العالمین نے معصیت اور نافرمانی گردانا ہے، قرار دیا ہے، ان سے وہ خود کو دور رکھیں. تو ایسی صورت میں یہ بہت ہی مناسب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کے تعلق سے وہ باتیں بھی بتائی ہوں، وہ تدبیریں بھی سجائی ہوں جن کو اپنا کر اللہ کے بندے نیکی کو اپنائیں اور گناہوں سے خود کو دور رکھ سکیں. قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے اندر یہ بات کثرت سے ملتی ہے کہ کون سی باتیں اپنا کر، کس طرح کے عمل کو اپنا کر، کون سی خوبیوں کو اپنا کر اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کی اطاعت کو اپنائیں اور نافرمانی سے خود کو دور رکھ سکیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اور بار بار اس کا ذکر سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اور تقوی اپنا کر بندہ خود کو نیکیوں کی طرف مائل کر سکتا ہے اور گناہوں سے دور رکھ سکتا ہے. تقوی اور اللہ رب العالمین کی خشیت اور ڈر یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے بنیادی چیز ہے گناہوں سے روکنے کے لیے اور نیکیوں کو اپنانے کے لیے. یہ تصور ایک عام سی بات ہے اسلام کی کہ ہر شخص کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر اور تقوی ہونا چاہیے اور برزخ کی زندگی کا تصور، برزخ کے احوال کا تصور ہر وقت قائم رہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے ہیں، اس کے جو انعامات ہیں، ان سب کو ہم ذہن کے اندر حاضر رکھیں تاکہ جب بھی ہمارے قدم گناہوں کی جانب بڑھیں تو فوراً اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی بات ہمارے ذہن میں آئے اور ہمیں یہ شرم لگے کہ جس اللہ کا ہمارے اوپر اتنا انعام ہے، اتنا کرم ہے، اس کے کرم کی احسانات کی اتنی صورتیں ہمیں میسر ہیں، تو ہم کیسے اس اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں. یہ احساس اگر ہوتا ہے انسان کو کہ وہ اللہ رب العالمین کے انعامات کو، اس کے کرم کو جب وہ اپنے تصور کے اندر، اپنے ذہن کے اندر زندہ رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے گریز کرتا ہے. اس لیے کہ جب اس کے قدم گناہوں کی جانب بڑھتے ہیں تو اسے شرم آتی ہے کہ ایک اللہ کا تو ہمارے اوپر اتنا کرم ہے اور اسی اللہ کا ہم کہا نہ مان کر اس کی معصیت اور نافرمانی کر رہے ہیں. اور انسان کے ذہن میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور بھی ہر وقت ہو کہ کیسے ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر حساب و کتاب دینا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر انعام و احسان کیا ہے اور ہم اس کی معصیت کر کے، معصیت کا ڈھیر اگر اس کے پاس لے جائیں گے تو کس طرح سے ہم اس کے سامنے اپنی پیشی کو صحیح ثابت کر سکیں گے. تو یہ تصور ذہن، یہ تصور جو ہے اسلامی عقیدہ کہ انسان ہر وقت اپنے ذہن کے اندر برزخ کی زندگی کے احوال کو، قیامت کے احوال کو، جنت کو اور جہنم کو، یہ تصور کو اپنے سامنے زندہ رکھے تاکہ وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو اور گناہوں سے خود کو دور کر سکے. اور گناہوں سے بچنے کے تعلق سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے اور اس سے دعائیں کرے. اللہ رب العالمین توفیق دینے والا ہے
वही बंदे को इस जानिब लाने वाला है कि वो नेकी की जानिब माइल हो और गुनाहों से खुद को दूर रख सके। ये हर शख्स जानता है, हमारे ईमान का यह हिस्सा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे तौफीक देता है वही गुनाहों से बचता है और वही नेकी के काम को करता है। हमारी हर नेकी का कोई भी अमल हो, छोटा या बड़ा, वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से होता है। और अगर हम गुनाहों से बचते हैं तो ये भी इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बचने की तौफीक दी, तब हम बचते हैं। जब सूरत हाल ये है और यही हकीकत और सच्चाई है, तो हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो दुआएं करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे, तौफीक मांगे कि अल्लाह तू हमें तौफीक दे कि मैं मासियत के कामों से खुद को दूर रख सकूं, अपनी जिंदगी के अंदर इसके अक्स को मैं ना देखूं और नेकी की जानिब हमारा रुझान हो, नेकी के कामों को हम करते रहें। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें मांगना है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदे लौ लगाएं और उससे मांगें। इसीलिए हदीस कुदसी के अंदर, बड़ी मशहूर हदीस कुदसी जिसका बार बार आप तस्करा सुनते हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल वादे कर दिया कि ये चीजें हमारे पास हैं, तुम मांगो। हिदायत के बारे में भी कहा कि हिदायत मैं देता हूं, हिदायत मुझसे मांगो। और हिदायत क्या है? नेकी की तरफ माइल होना और गुनाहों से बचना। तो ये हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना है। और सूरह बकरा की आयत करीमा जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, ये भी इसी ताल्लुक की आयत करीमा है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मेरे बंदे जब आपसे सवाल करें मेरी बाबत तो उनसे कहो कि मैं करीब हूं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से करीब है। उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, जब कोई पुकारने वाला, मांगने वाला मुझसे मांगता है तो उस मांगने वाले की पुकार को, मैं इसको दुआ को कबूल करता हूं। यानी बंदा मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कि बंदे उससे मांगे, उससे लौ लगाएं, उससे अपनी मग़फ़िरत भी चाहें और उसके पास जो कुछ है, जिस चीज का वो मालिक है तने तनहा, उससे बंदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे उससे वो चीज मांगे। फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी, मेरे बंदों को चाहिए कि वो मेरा कहा माने, मुझ पर ईमान रखें। और यही चीजें हिदायत की हैं। इसी तरीके से बंदे सही रास्ता पाते हैं और बुरे रास्तों से खुद को दूर रखते हैं। ये चीजें तो वो हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा, और ये चीज कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें, उससे लौ लगाएं और मांगें, ये एक आम चीजें हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि किन चीजों से हम गुनाह करते हैं, एक तो इंसान के अंदर इंसान का नफ्स है जो बहुत ही लालची भी होता है। बसा औकात इंसान के अंदर हिस्सो तमा होती है, उसके अंदर बुख्ल के जज्बात होते हैं, शोह के जज्बात होते हैं। वो चाहता है कि दूसरों के पास जो चीजें हैं वो अभी हमें हासिल हो जाएं, और यही चीज कभी कभी इंसान को गुनाह की तरफ माइल करती है। वो अपने ऊपर की तरफ देखता है कि माशरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो आसाइशें हैं, वो दौलतें हैं, वो तमाम तरह की चीजें हैं जो हमें मुयस्सर नहीं है। तो उसकी निगाहें उस जानिब जब बढ़ती हैं तो वो खुद चाहता है कि हम भी ये चीजें हासिल कर लें। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान उनके हुसूल के लिए जब कोशिश करता है तो गलत तरीके अपना लेता है, और यही चीजें इंसान को हराम की तरफ ले जाती हैं और इंसान अपनी रोजी को हराम कर लेता है। रोजी जिसको मुसलमानों को, जिसकी ताकीद है कि इस चीज का ख्याल रखे कि उनकी रोजी, उनकी जो रिस्क है वो हलाल हो, इसलिए कि ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही बुनियादी चीज है किसी भी इंसान की कामरानी और कामयाबी के लिए, इस दुनिया के अंदर भी साथनमंदी के लिए और उखरवी जिंदगी में सुरखरुई के लिए। बहुत जरूरी कि इंसान की जो रोजी हो वो हलाल हो। और इंसान जब शूह के अंदर और हिर्स और तमा के अंदर पड़ जाता है, अपने नफ्स की सुनने लगता है, तो बसा औकात उस जानिब उसके कदम बढ़ते हैं कि वो हलाल हराम की तमीज को छोड़ देता है और हराम को वो अपना लेता है, जिससे उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है दुनिया का भी, जहां उसको रुसवाई देखनी पड़ती है और उसकी रोजी हराम हो जाती है, और आखिरत में उसका जो होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने। तो ये भी एक आम चीज है जिसको हर शख्स को अपनाना है। उसके बाद हम देखें कि किन चीजों से इंसान गुनाहों के अंदर ज्यादा पड़ता है। कुरान करीम के अंदर, हदीसों के अंदर जो भी बातें मिलती हैं, अक्सर बातें इसी कबील की होती हैं कि इंसान कैसे गुनाहों से बचे और अपने आप को मंदुबात, मुस्तहबात, उसके बाद फराइज जो सबसे ऊपर हैं उनका अपने आप को पाबंद करें। तो यहां अगर हम देखेंगे तो हर इंसान को सबसे पहले तो पाबंदी करनी है नमाज की, इसलिए कि नमाज के बाबत आप लोग सुनते हैं, अभी खुतबे जुमा में भी आप लोगों ने सुना कि यही वो चीज है जिसका सबसे पहले इंसान के अमाल में से हिसाब होगा। इसका मामला जिस शख्स का बेहतर रहा तो उसके लिए बेहतरी है, लेकिन जो इस मामले में फंस गया तो उसके लिए बड़ी मुश्किलें हैं। ये आप लोगों ने अभी सुना, लेकिन अब गौर करें कि इसकी बुनियाद क्या है कि नमाज का मामला अगर हमारा ठीक है तो आखिरत में हमारे लिए हमारा मामला ठीक हो सकता है। इसकी बुनियाद क्या है? तो कुरान करीम की आयत करीमा
सूरह अनकबूत की हमसे कहती है वअक़िमिस्सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज को कायम करो, बेशक नमाज फहशा और मुनकर से रोकती है, गलत कामों से, बुरी बातों से और मुनकरात से रोकती है। यानी नमाज की ये खूबी है, इसके अंदर ये मलका है कि जो शख्स नमाज को अपना लेता है वो बुराइयों से दूर रहता है। तो जो शख्स नमाज को अपनाएगा सही तरीके से और वो बुराइयों से दूर रहा तो जाहिर है कि उसका मामला आखिरत के अंदर बहुत आसान होने वाला है। इसीलिए नमाज की इतनी ज्यादा अहमियत है कि उसका सबसे पहले हिसाब किताब होगा, और जो बंदा इस मामले में पास हो गया उसके लिए आसानियां होंगी, इसलिए कि उसने दुनिया के अंदर गुनाह कम से कम किया होगा। इसलिए कि उसने जब नमाज को अपनाया तो नमाज अपने आप उसके अंदर ये खूबी है, उसकी ये क्वालिटी है कि वो बंदों को, जो शख्स उस नमाज को अपनाता है, नमाज के हुकूक को अदा करता है, अपनी नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन के तसव्वुर को और उसके जिक्र को जिंदा रखता है, तो ऐसी सूरत में वो नमाज उसको बुराइयों से रोकती है। तो अगर हम नमाज के पाबंद बनते हैं, सबसे पहले इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि बुराई से अगर हमें रुकना है तो हम अपनी नमाज का जायजा लें। अगर हमारी नमाज दुरुस्त नहीं है तो उसको दुरुस्त करें, अगर हम उसके पाबंद नहीं है तो हम पाबंद बनाएं, और अपने फैमिली के अंदर और आसपास की दुनिया में, माशरे के अंदर जो लोग इससे दूर रहते हैं उनको तरगीब दिलाएं। हम इसके बारे में नमाज के सिलसिले में खुतबे और तकरीरें हुआ करती हैं, लेकिन जो लोग नमाज पढ़ते हैं वही नमाज के लिए आते हैं। इसके अंदर इजाफे नहीं देखे जाते, मुसल्लियान की तादाद के अंदर इजाफे नहीं देखे जाते हैं। इसके भी अपने कुछ वजूहात हैं, इरादा ही नहीं बनता। तकरीरें तो हम सुनते हैं, और इस दौर के अंदर हम देखें तो बहुत ज्यादा कसरत से इंतजाम ऐसा हुआ है कि खुतबे और तकरीरें होती हैं, जलसे होते हैं, महफिलें लगती हैं जहां दीन की बातें बताई जाती हैं, और ये काम इस दौर में, आज की दुनिया में बहुत कसरत से हो रहा है। और बड़े बड़े उलमा की तकरीरें सुनना हमारे लिए आसान भी है, इसलिए कि उसके वसाइल हमारे पास दस्तयाब हैं। लेकिन सब सुनने के बाद होता क्या है कि जो कुछ हम सुनते हैं उसी महफिल से निकलने के बाद भी वो बातें हमारे ज़हन से निकल जाती हैं। मामला यह है कि अज़्म और इरादे की कमी है। इंसान पहले अज़्म और इरादा करे कि हमें बनना है, हमें नेक बनना है, हमें अल्लाह का स्वाले बंदा बनना है, हमें बुराइयों से दूर रहना है। ये इरादा और अज़्म अगर हम करते हैं तभी हमारे जहन पे और हमारे ज़बान पे बात आएगी कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें, हम मांगें। इंसान जब कोशिश करेगा और देखेगा कि उससे नहीं हो रहा है तो वो रब्बे करीम की तरफ लौटेगा और अपने परवरदिगार से कहेगा कि अल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं, तू मेरी मदद कर, तू ही मदद करने वाला है, तू ही तौफीक देने वाला है, मेरी जानिब से कोशिश करना है तो मैं कोशिश कर रहा हूं। ए अल्लाह तू इस रास्ते को मेरे लिए आसान कर कि मैं नेकी को अपना सकूं और खुद को मैं बुराइयों से दूर रख सकूं। तो सबसे पहले इंसान को अपनी नमाज की खबर लेनी है, अगर उसको बुराई से रुकना है, मुनकरात से रुकना है। तो उसके बाद इंसान देखे कि उसके अंदर किन चीजों से गुनाह सरायत होते हैं, किन आदा व जवारे से वो गुनाह ज्यादा करता है। यहां हम देखेंगे तो इंसान की जबान जो होती है ये बहुत ही खतरनाक, इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है। इसीलिए हदीस के अंदर आप लोग बारहा सुनते हैं कि वहल यकुब्बुन्नास अला वजूहिम फिन्नारी वहल यकुब्बुन्नास अला वजूहिम इल्ला हसाइदु अलसनतिहिम, यानी जहन्नम में इंसान को चेहरे के बल गिराने वाली जो चीज है वो क्या है? वो इंसान के मुंह से, इंसान की जबान से निकलने वाली बातें ही तो हैं। इंसान इसका ख्याल नहीं रखता है, जबान चलती है, इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुली छूट दी है कि वो अपनी जबान को चला सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये छूट नहीं दी है कि उससे हम हराम बात भी निकालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर झूठ को झूठ कहा है और उसे हराम करार दिया है तो झूठ की बातें हमारी जबान से ना निकलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी मुसलमान की गीबत को अगर नाजायज करार दिया है तो गीबत की बातें, चुगली की बातें, इस कबील की बातें हमारी जबान से न निकलें। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, और ये हदीस भी आप लोग बारहा सुनते हैं। मैं समझता हूं कि हर शख्स को यह हदीस याद भी होगी या कम से कम इसका तर्जुमा याद होगा। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, यानी जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो भली बात कहे या खामोश रहे। इसीलिए मुहद्दिसीन और उलमा ने यह कायदा बयान किया है कि इंसान अपनी जबान को खोलने से पहले गौर कर ले कि जो बात बोलने वाला वो है उसके अंदर भलाई का पहलू है या नहीं है। अगर बराबर सराबर है, यानी उसके अंदर कोई बुराई और कोई कबाहत भी नहीं है बोलने में और उसका कोई फायदा भी नहीं है, तो उलमा मुस्तहब और मंदूब यही करार देते हैं कि इंसान ऐसी बात भी अपनी जबान पर न लाए जो जायज तो है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन इंसान जब देखे कि वो उसके बोलने में फायदा है, जबान खोलने में फायदा है, अल्फाज को मुंह से निकालने में फायदा है, तब वो बोले, उसी के अंदर भला है तब वो बोले औली अस्मु। अगर ऐसा मामला नहीं है तो इंसान अपनी जबान को बंद रखे, इसलिए कि ऐसी चीज है जो इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है और इंसान इससे बहुत बड़े बड़े गुनाह को करता है। उसी तरह इंसान अगर देखें
اور غور کرے تو اس کی نگاہ ایسی ہے جس سے انسان گناہ کرتا ہے. اسلام نے بہت ساری چیزوں کو سد باب کے طور پر منع کر دیا ہے، یعنی دروازہ ہی بند کر دیا کہ انسان گناہوں کے اندر گھس نہ جائے. اسی لیے نگاہ پر اللہ رب العالمین نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں. انسان دیکھے، وہ انسان کو نگاہ اللہ رب العالمین نے دی ہے، یہ اس کا بہت بڑا انعام اور کرم ہے اور بہت بڑی آشائش اور بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن انسان سے حرام کاموں کی طرف نہ دیکھے. راستہ چلتے وقت بہت ساری چیزیں ایسی گزرتی ہیں آس پاس سے کہ انسان کی نگاہیں پڑ سکتی ہیں، لیکن اسلام میں جو تعلیم دی ہے کہ ہم فضول نظر سے بچیں، فالتو نگاہ بھی کہیں نہ ڈالیں. اس لیے انسان اگر سڑکوں پہ بازاروں سے گزر رہا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہوئے چلے تاکہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں اس کا دھیان ہو، اس کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے. اور اگر کوئی چیز بغل سے گزرتی ہے، کہیں سڑکوں پہ کہیں سے نگاہ اگر پڑتی ہے تو اس کی نگاہ اوپروچھی ہوگی، وہ پوری بھرپور نگاہ کہیں نہیں ڈالے گا. گزرنے والا گزر جائے گا، لیکن وہ یہ بھی نہیں اس کو احساس ہوگا کہ کون گزرا. اگر انسان کی نگاہ اگر ہلکی پھلکی نگاہ سے اگر انسان چل رہا ہے، کسی چیز پر بھرپور نگاہ نہیں ڈال رہا ہے، تو ایسی صورت میں انسان گزر جائے گا اور کسی محرمات پر اس کی نگاہ نہیں پڑے گی. اور اگر پڑے گی بھی ہی تو چونکہ وہ بندہ احساس رکھتا ہے، اس کا احساس زندہ ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگا ہے، فوراً اس کی نگاہ ہٹ جائے گی. ایسا نہیں ہرگز ہو سکتا کہ وہ اپنی نگاہ کے پیچھے اس نگاہ کو دوبارہ لے جائے. اور انسان فالتو کاموں سے بچ کے رہے. اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں. ایک ترمذی کی حدیث ملتی ہے جس کو آپ لوگوں نے بار بار سنا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی انسان کی یہ خوبی، انسان کے کمال ایمان اور کمال مسلمان ہونے کی یہ دلیل ہے کہ انسان فضول کے کاموں میں نہ لگے. جو چیزیں، جو کام، جو باتیں یا جو کام اس کے لیے ضروری اور غیر اہم ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، غیر اہم ہے، تو وہ ان کاموں سے بچے. جو کام ضرورت کا ہو، جو بات ضرورت کی ہو، جو چیز دیکھنا اس کے لیے ضروری ہو، انہی چیزوں پہ انسان نگاہ ڈالے. اور اس سلسلے میں، اس حدیث کے سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، وَلَا سِيَّمَا كَثْرَةُ الْفُضُولِ فِي مَن لَيْسَ بِالْمَرْءِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ مِنْ أَمْرِ دِينِ غَيْرِهِ أَوْ دُنْيَاهُ. ہوتا یہ ہے دنیا کے اندر کہ ہم دوسروں کی طرف بھی نگاہیں ڈال کے رکھتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کے پاس کیا آشائشیں ہیں، وہ کون سی بات کر رہا ہے. اس کی باتوں کو سننا، اس کے کاموں کو دیکھنا اور ادھر ادھر پھیلانا، یہ انسان کے لیے بے حد غیر ضروری چیز ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ دوسروں کے کاموں کی ہمیں ضرورت ہے؟ انسان اپنے کام سے کام رکھے اور دوسروں کو اپنا کام کرنے دے. انسان کی نگاہ کسی کو اگر حرام کرتے ہوئے پڑ جائے، انسان جان جائے کسی کے بارے میں، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، اس کے جو اصول اور ضابطے ہیں، ان کی روشنی میں ان کو منع کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ انسان دوسروں کو ٹٹولتا پھرے، دوسروں پر نگاہیں رکھے کہ وہ کیا کما رہے ہیں، کس سے ان کا کاروبار ہے، وہ کس چیز کا لین دین کر رہا ہے، کیسے وہ ترقی کر رہا ہے، اس کے گھر کا کھان پان کیسا ہے، اس کے اندر آشائشیں کیسی ہیں. یہ چیزیں دیکھنے کی کوئی ضرورت انسان کو نہیں ہے. اور اسی سلسلے میں شیخ عبد الرحمن سعدی جو اس دور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان من لم یترک ما لا یعنی فان مسیء فی اسلامی. اسی حدیث کے پیش نظر انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ حدیث یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ جو شخص غیر اہم کاموں کو، یعنی جو کام اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کو اگر نہیں چھوڑتا ہے تو وہ اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے مسلمان ہونے کے ساتھ وہ برا کر رہا ہے. اس لیے کہ اس کے اندر ہے کہ وہ بھلا کرنا، اپنے دین کا اگر بھلا انسان کو کرنا ہے، اسے کمال تک پہنچانا ہے، تو اسے یہ کرنا ہوگا کہ وہ جو کام اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جو بات اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ان میں وہ نہ پڑے، ہرگز نہ پڑے. لیکن اگر پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی دینداری کو مجروح کر رہا ہے، اسے وہ خطرے میں ڈال رہا ہے. اور اسی طرح ایک بہت بڑی چیز جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور اس دور کے اندر یہ بہت بڑا مرض بن چکا ہے کہ لوگ دوستی کرتے ہیں بغیر دیکھے کہ یہ شخص کیسا ہے. اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جو دوست جیسا ہوتا ہے اس سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. تو انسان کو چاہیے، ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھ کے دوستی کرے کہ کس سے وہ دوستی کر رہا ہے. اس چیز کو ہم اگر دیکھیں گے کہ کس طرح کی دوستی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے. بچپن میں دوست ایک ساتھ پڑھتے ہیں، کہیں ساتھ ہو گیا، کھیل کے اندر ساتھ ہو گیا یا پڑھائی کے اندر ساتھ ہو گیا، وہ بڑے ہوئے اور ایک ساتھ رہنے لگے، ان کا گروپ بن گیا. دوستوں کا ایک گروپ ہے، دوستوں کی یہ منڈلی ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں اور مجبوری ہوتی ہے کہ چونکہ گروپ ہے اس لیے اس گروپ کے ہر آدمی اپنے ساتھ رکھیں اور ساتھ رہیں. یہ کہاں کا اصول کا ضابطہ ہے؟ اسلام نے تو سکھایا ہے کہ جو شخص بے دین ہے،
जो शख्स राह नहीं है, देखना चाहिए इंसान को कि अगर हमारे दोस्त इस्लाम का पाबंद नहीं है, नमाज का पाबंद नहीं है, उसे समझाए और लेके आए, या उसके अंदर अगर मुहर्रमात के इर्तिकाब का जज्बा और रुझान पाया जा रहा है रोकने की कोशिश करे, और अगर वो नहीं मान रहा है, लाइन पे सीधे रास्ते पे नहीं आ रहा है, तो ऐसे शख्स की दोस्ती से किनारा कस हो जाए। उसको अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो साथ रहेगा, वो सीखेगा भी उससे, उसकी बातें उसके अंदर आ जाएंगी, और इंसान को अपने दीन को और अपने अखलाक को बचाना है। इसी तरह बड़ी मशहूर हदीस आप लोग ने सुना है, ला तुसाहिब मुमिनन वला यकुल तअमक इल्ला तक़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आप लोगों ने बार बार सुनी है कि देखो, साथ रहो तो सिर्फ मुसलमान और सच्चे इस्लाम वाले के, जो सही मानों में मुसलमान हो, इस्लाम को समझता हो, इस्लाम को बरतता हो, इस्लाम पे अमल करता हो। और इस्लाम पे अमल करने के लिए ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर झांक के देखें। अगर वो ज़ाहिरी तौर से नमाज का पाबंद है, मुहर्रमात से बचता है, नेकी का जज्बा उसके अंदर पाया जाता है, बज़ाहिर हम देखते हैं तो ऐसा ही लगता है, तो ऐसे शख्स से दोस्ती रखने में, साथ रहने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर ज़ाहिरी तौर से उसका मामला बिगड़ा हुआ है, मस्जिदों के अंदर वो हाजिर नहीं होता है, या उसके अंदर दूसरी खराबियां मौजूद हैं, और इस जमाने के अंदर हम देखेंगे कि कितने लोग हैं फजूल कामों के ताल्लुक से अगर देखें तो कितनी ऐसी बातें हैं जो वसाइल इलाम से हो रहे हैं। लोग देर रात तक जागते हैं और न जाने कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे मैसेज को इधर से उधर भेजते हैं, और कैसे कैसे पोस्ट वो अपने नस्ब करते हैं। ये सारी बातें हो रही हैं जो बिल्कुल लायानी और फजूल हैं, जो किसी के किसी काम की नहीं होती हैं। मुसलमान को अगर मुसलमान बनना है, गुनाहों से बचना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा सही मानों में बनना है, तो इन चीजों पर उसे गौर करना होगा। और अगर हम तब्दीली चाहते हैं अपने अंदर, अपने माशरे के अंदर, अपने गिरदोपेश में, अपनी फैमिली के अंदर, तो उसके लिए इरादा करना होगा और अज़्म करना होगा, और उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें दुआएं करनी होंगी, उससे तलब करना होगा कि अल्लाह, हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तो हमें तौफीक दे, तो हमें इस रास्ते पे ले आ कि हम तेरा कहाँ माने, तेरी बातों को हम सुने, तेरी इबादत हम सही मानों में कर सकें, और जिन चीजों से तूने रोक दिया है उससे हम रुक के रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।